Okay, so we have Happy, who is new in this class, and we have Reenu, who is new, and we have Amit, but Amit has been my student earlier, so you know some of the things, my teaching style and all, what I tell you in the essays. It's Wednesday. On Wednesday, we do task 2, which is an essay, and you know what an essay is. So I'll begin with maybe Bindu. Tell me what it is, like what is this? The smallest unit in English language is letters ABCD. We combine them in a meaningful way. That's important, in a meaningful way. If that's not in a meaningful way, it will be messed up. Then it becomes words. We combine words in a meaningful way. Phrase, we combine phrases and words in a meaningful way. Sentence, sentences in a meaningful way at a right place. 3-4 sentences make para, and 3-4 para we combine in a meaningful way. Intro, main body and conclusion, it becomes an essay. And in IELTS, this is the requirement. You are supposed to write essays. And how many types of essays we cover? Agree, disagree? Discussion essay, merit, demerit, problematic essay and double question essay. So I think we have done these essays, agree, disagree, discussion, merit, demerit. This week, today, we are focusing problematic essay. Next week, we will be doing double question essay. Every week, I pick one type of essay and we cover many different essays of that particular type. Okay? And which book you are supposed to follow, like Bible or like your religious book, this book for essays especially. It contains 100 essays written by us, written by experts that contain CVG which you are supposed to learn, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, उस CVG के लिए आप यहाँ पे आए हो और उस CVG को मैं भी explain करता हूँ, वो आपने धीरे धीरे सीखना है और improve करना है. Okay, but you don't need that book now. You don't need it because I am here. I wrote that book. Many of the things are there which are the creation of my mind. So मैं खुद ही सामने खड़ा हूँ तो you don't need to access that book. I'll explain everything myself. Okay? Clear, Harinu? But some of the things should be explained in class because you are new, you don't understand. Khurshida, you know it well. Yashpreet, you know it well. All students are well aware what these things are. तो पहले एक level पे आना बहुत ज़रूरी है. What is CVG? Reenu, yesterday I explained it. Amit, what is CVG? तन्मय, कंटेंट, वोकैब, ग्रामर. कंटेंट भाई मटेरियल होना चाहिए, जिस भी विषय में वो होगा ऐसे आपका. एनवायरनमेंट हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, वर्क हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकता है, सोशल लिविंग हो सकता है. आपके पास कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, तभी तो कुछ बात रख पाओगे. सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज, आइडियाज, अलग अलग नाम है इसके. ओके. सेकेंड, वोकैबुलरी. जो बात सोचोगे, जो थॉट प्रोसेस आपका बनेगा, देयर विल बी वर्ड्स. आप सोचोगे कठिनाइयाँ, इंग्लिश में आपके पास एडवर्सिटी होना चाहिए, हार्डशिप होना चाहिए. आप सोचोगे सामना करना, आपके पास फेस होना चाहिए, कन्फ्रंट होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए. ठीक है ना? आप कहोगे हासिल करना, आपके पास गेट होना चाहिए, अटेन होना चाहिए, अकम्प्लिश होना चाहिए, अचीव होना चाहिए, ऑब्टेन होना चाहिए, प्रोक्योर होना चाहिए. सो देयर आर सो मेनी टर्म्स जो हासिल करने के लिए आप यूज करोगे. तो वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट. ओके. एंड द थर्ड थिंग इज ग्रामर. जो भी थॉट आएगा भाई, उसमें ग्रामर डालनी है. एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है. ठीक है? अगर मैं अभी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं बना रहा होता तो आपको मेरी बात समझ ही ना आ रही होती. ठीक है ना? तो सेंटेंस फॉर्मेशन हर लैंग्वेज में होती है. ये हिंदी में भी है, ये पंजाबी में भी है. उसमें भी बिगाड़ोगे तो वो भी बात समझ में आनी बंद हो जाएगी. तो ग्रामर की गलती करोगे तो बात समझ ही नहीं आएगी, और बात समझ में नहीं आ रही तो फिर उस बात का फायदा क्या है. ओके. सो ग्रामर में दो चीजें होती हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड ग्रामेटिकल रेंज. ठीक है ना? कि तुम कितनी सही ग्रामर यूज कर रहे हो और कितनी अलग अलग तरह की ग्रामर यूज कर रहे हो. अलग तरह से मेरा क्या मतलब है? एक्टिव ग्रामर, पैसिव ग्रामर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो इसकी रेंज आपको एग्जिबिट करनी है. मोडाल्स यूज करने हैं, जीरंड्स यूज करने हैं, इन्फिनिटिव सेंटेंस यूज करने हैं, कुछ अलग मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है. तब जाके आपको कहीं अच्छा स्कोर मिलेगा. ये बात समझ में आई? ये क्लियर हो गया CVG? सो दिस इज समथिंग यू नीड टू इम्प्रूव. एम आई राइट खुर्शीदा? आर यू ओके? ओके. व्हाट इज OIR?
रुको, जिससे पूछता हूं वही जवाब देगा। रामवीर, व्हाट इज OIR? रोहित, यू डोंट नो? पार्थ, observation, imitation, repetition. Rambir, I explained. How can you forget? Yesterday I explained twice. You were sitting with me. You observe something written by expert. You learn CVG out of that while observing. Then you imitate. Then you write an essay. And you write those things which were there in the essay of the expert. And you repeat this process. You keep observing, keep writing, keep observing, keep writing, keep observing, keep writing, and you become expert. Not expert, but you improve to that level which you want. Is that clear? Happy? Is that clear? Amit? So OIR is very important, not just in this writing. The same thing in speaking. अच्छी speaking करनी है तो अच्छे speakers को सुनो. How they speak, what they speak. तो उससे speaking अच्छी हो जाएगी. But it's not अच्छी रीडिंग करनी है तो अच्छे रीडर को रीड करता हुआ देखो. नहीं, ये वहाँ काम नहीं करेगी. या अच्छे लिसनर को सुनता हुआ देखो, उससे लिसनिंग इंप्रूव होगी. नहीं, in these two aspects it won't improve. These two activities you have to do by yourself. Okay? Then what is this? Assessment criteria of essays. So what is this? Jaspreet? Grammatical range and accuracy. Whatever you will be writing, उसमें ये दो चीजें जरूर चाहिए. Grammatical range and accuracy. वो सही नहीं है तो 25% स्कोर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या उसमें आपको कम स्कोर मिलेगा. So this is the 1/4 aspect of the assessment. Then lexical resources, vocabulary, क्या idioms हैं, क्या phrases हैं, ठीक है ना, क्या आपके collocations आपने यूज किए हैं, कितने अच्छे connectors यूज किए हैं, कैसे adverb, कैसे adjective, वो सारी चीज आपकी vocab में आती है. CC, coherence and cohesion, how logically you have organized your idea. एक आइडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3-4 लाइनें लिखनी होती हैं, तो 3-4 लाइनें कितने सही तरीके से तुमने लिखी हैं, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है. ओके. एंड लास्ट इज टास्क रिस्पॉन्स. जो पूछा था वही बताया या कुछ और ही चिपका दिया, या वो बताया ही नहीं जो पूछा था. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. जो डिमांड है वो पूरी करो. अग्री डिसएग्री मांगा है तो बताओ अग्री कर रहे हो, डिसएग्री. डिस्कस बोथ व्यूज, गिव योर ओपिनियन कहा है तो करो दोनों व्यूज को डिस्कस और दो अपनी ओपिनियन. एडवांटेज आउटवे करते हैं डिसएडवांटेज को, ये पूछा है तो बताओ कि नहीं डिसएडवांटेज आउटवे करते हैं या एडवांटेज करते हैं. तो प्रॉब्लमेटिक में कॉजेज पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो बताओ कॉजेज ये हैं और सॉल्यूशंस ये हैं. ये क्लियर हुआ. और ये क्या है भाई, ये तो टाइप्स हो गए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ पैटर्न. अ पैटर्न इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. जैसे हमारे सारे दिन का एक पैटर्न होता है. हम उठते हैं अलार्म लगा के, उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद नहाते हैं, रेडी होते हैं, अपनी क्लास में आते हैं, वो अटेंड करते हैं, वापस जाते हैं. पैटर्न है दिन का. वैसे कैसे राइटिंग का ही पैटर्न होता है. पहले इंट्रो लिखना है, इंट्रो को एग्जैक्टली कैसे लिखना है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, टॉपिक, प्रॉम्प्ट, रीफ्रेज और थीसिस या फिर आउटलाइन. तो ये 3 सेंटेंस होते हैं इंट्रो में. इसी के हिसाब से तुम्हें इसको डेवलप करना है. ऐसे ही नहीं कहीं भी कुछ भी याद आ गया वही लिख दिया. रामवीर, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना. रामवीर ने क्या किया हुआ था वो आप सबके लिए जानना जरूरी है. शुरू हुआ ऐसे, ठीक है ना, और शुरू होते ही बोथ व्यू पॉइंट्स आर करेक्ट. पहली लाइन बोथ व्यू पॉइंट्स आर करेक्ट. पहली लाइन ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तन में वो सही था, वो सही था. और तन में सोचा कौन और किस में सही था. तो पहले वो बात भी तो होनी चाहिए. तो इसलिए पहले टॉपिक तो लाओ. टॉपिक किस बारे में है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखो. टॉपिक में कौन से दो पक्षों की बात हो रही है, टॉपिक, प्रॉम्प्ट, रीफ्रेज. प्रॉम्प्ट क्या है, उसमें बात किस चीज पे है. उसके बाद वो थीसिस आती है जो तुमने लिखा. बोथ व्यू पॉइंट्स आर करेक्ट इन वन वे और अदर, कि अपने हिसाब से दोनों ही नजरिए सही हैं. वो तीसरी लाइन होगी तो कोहेरेंट होगी. पहली लाइन है वो तो वो कोई सेंस ही नहीं दे रही, वो मीनिंगलेस है वहां पे. यानी काम करना है वो. जैसे कल मैंने बताया था कि शुरू में आते ही मतलब हाँ भाई खाना खाओ पहले तो बाकी चीजें बाद में. पहले पानी होता है, फिर कोल्ड ड्रिंक होता है, उसके बाद फिर चाय होती है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डेजर्ट आता है. तो आते ही सीधा शाही पनीर पे मंडवा दो लोगों को. समझ गए. सो चीज जरूरी है बट वो कहाँ आए दैट्स इंपॉर्टेंट.
ठीक है, क्लियर, कन्विंस हो गया? और बोलूं, हो गया? तो ये सारी चीजें कॉमन है, कॉमन प्रैक्टिस से पता होनी चाहिए। अब इसी के बेस पे हमें ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना होता है ऐसे? हैप्पी 250 मिनिमम है, उसके ऊपर आप 250 300 दैट इज द आइडियल लेंथ। उसे कम करोगे तो देयर विल बी स्कोर डिडक्शन। ज्यादा का एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं कि ज्यादा लिखने पे डिडक्शन है, लेकिन ज्यादा लिखने पे आप ज्यादा चांस दे रहे हो अपनी बात को डिस्ट्रैक्ट करने के, अपनी गलतियां उनको बताने के। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग लॉन्ग। 2 शीट लेने की जरूरत ही नहीं है, 1 शीट आगे पीछे काफी होती है ठीक से लिखोगे तो। ज्यादा लिखने का स्कोर नहीं है, कम लिखने का स्कोर डिडक्शन जरूर है। क्लियर? तो आज हम क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लमेटिक एसे। क्या बोलते हैं? ओके, जब एक प्रॉब्लम की बात आती है तो उससे 3 चीजें जुड़ती है हमेशा। अमित, कौन सी 3 चीजें? कि उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, उस प्रॉब्लम से आगे और क्या प्रॉब्लम और क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे सब प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही हैं, और उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये 3 चीजें एक प्रॉब्लम के साथ हमेशा एसोसिएटेड होती हैं। ये बात तो क्लियर है सबको? ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए, अगर मैंने शायद ये पहले भी डिस्कस किया होगा, प्रॉब्लम है ओबेसिटी, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, मोटापा, या इसका दूसरा वर्ड ओवरवेट, हद से ज्यादा वजन हो जाना जितना उस उम्र में या उस हाइट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ओबेसिटी, अगर ये प्रॉब्लम है तो ओबेसिटी का कॉज क्या होता है? फास्ट फूड, डिपेंड करता है, फास्ट फूड कोई महीने में 1 बार खाए उसी से ओबेस हो जाएगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फास्ट फूड, दैट मे बी वन कॉज। और ओवर ईटिंग, जरूरी है फास्ट फूड, नॉर्मल खाना भी अगर हद से ज्यादा बंदा खाता रहेगा तो उससे भी तो ओबेसिटी हो जाएगी ना। और क्या हो सकता है? हाँ, नॉट इन्वॉल्विंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अच्छा टर्म। सिडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है? सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिसमें ज्यादा हिलडुल ना हो, बस टीवी देखना, पबजी खेलना और बस खाते रहना, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, वो सारी चीजें जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं, जिसको बर्न ही नहीं कर रहे तुम लोग। ये बात क्लियर हुई? तो ये हो गया, मान लो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हालांकि रीजंस और भी हैं, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फास्ट फूड आपने कहा, लो इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इफेक्ट ओबेसिटी की वजह से आगे और क्या प्रभाव पड़ते हैं भाई? ठीक है ना, उसको आगे डिजीज, कई सारे और डिसऑर्डर का उसका लाइक्लीहुड बढ़ जाता है। ओबेस लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आते हैं। क्यों? ओबेसिटी की वजह से जो हमारी वीन्स होती हैं वो स्प्रेस हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उनका ब्लड का फ्लो उस हिसाब से हिंडर हो जाता है, और वो हिंडर हो जाता है तो पंप, जो हमारा दिल, हमारा पंप का काम करता है, पाइप में कहीं ब्लॉकेज होगी तो सारा जोर किस पे पड़ेगा? पंप पे पड़ेगा, और वो पंप फिर फेल हो जाता है एक दिन। तो ये एक सीधा है। ओवरवेट की वजह से भाई सारा वजन कहाँ? पैरों पे, घुटनों पे, उस बंदे को फिर घुटनों में दर्द होने लगता है। जॉइंट पे, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां बैक पेन होने लगता है, जस्ट बिकॉज कि इतना सारा वजन उसको अपने मेन पैर, घुटने और हमारी जो स्पाइन होती है, तो ये प्रॉब्लम। और एक चीज तुम मिस कर रहे हो, वो तो हो ही गया, वो सारा उसमें आ गया ना, बीपी वगैरह की चीजों में। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक बंदा जब मोटा हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, तो उसको अजीब लगने लगता है, या लोग उसको अजीब लगाना शुरू कर देते हैं, उसको अलग अलग नाम से पुकार के, समथिंग लाइक दैट। तो ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, आगे बहुत सारे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमेशा आमतौर पे, ध्यान रखना, आमतौर पे सॉल्यूशन होगा कॉज को खत्म करना। कॉज को खत्म कर दो, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सॉल्यूशन, ओवर ईटिंग रोको, फास्ट फूड का इंटेक जो एक्सेसिव है उसको मॉडरेशन में लेके आओ या उसको मिनिमम करो, इन्वॉल्व हो जाओ फिजिकल एक्टिविटीज में, आउटडोर गेम्स में, ठीक है ना, ये सारी चीजें करो, तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। उस प्रॉब्लम के आगे जो सब प्रॉब्लम है, इफेक्ट, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई? बट आमतौर पे एक ऐसे में वो तीनों की तीनों चीजें नहीं पूछते। कितनी? जनरली 2 चीजें, या तो वो पूछेंगे कॉजेज और सॉल्यूशन, लेकिन हमेशा कॉजेज सॉल्यूशन भी नहीं होते, या होते हैं कॉजेज और इफेक्ट, लेकिन हमेशा कॉजेज इफेक्ट भी नहीं होते। कई बार इफेक्ट और सॉल्यूशन ही होते हैं, कॉजेज पूछ नहीं होते, और कई बार सिर्फ एक ही चीज पूछी होती है और वही हमें पूरे ऐसे में बतानी होती है। जो पूछा है वही बताना है, जो नहीं पूछा वो करना ही नहीं है,
वरना वो किसका स्कोर खत्म हो जाएगा, टास्क रिस्पॉन्स का। ये पूछा ही नहीं था तो ये बच्चा क्यों भर रहा है अपनी लाइनें, अपने सेंटेंसेस क्यों कवर कर रहा है, वर्ड लिमिट क्यों पूरी कर रहा है फालतू की उस चीज से जो कि मांगी नहीं है। समझ गए? अब तुम्हें कोई ड्राइविंग ऑफेंस में पकड़ ले और वो कहे कि अपनी आरसी दिखाओ, तुम राशन कार्ड निकाल रहे हो, राशन कार्ड देखिए, तो अरे अपनी पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेके आओ, तो तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हो स्कूल का, ये देख लो सर, ये देख लो, वो चमाट मारेगा तुमको। समझ रहे हो? सो जो नहीं मांगा वो नहीं देना। निखिल कुछ रिलेट कर पा रहा है? अब निखिल से रियल एग्जाम मांगेंगे, कैन आई सी योर आइडेंटिटी? निखिल कहेगा हाँ राशन कार्ड लाए हूं सर। है राशन कार्ड है नहीं? तुम तो होगे किसी के राशन कार्ड में बेटा, फिर तो तुम्हारे नाम का राशन नहीं आता घर में। देखो निखिल इतना अच्छा बच्चा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा ही देता है। ठीक है ना? और मैं किसी और के बारे में क्यों नहीं बोला, निखिल के बारे में, बच्चा इतना अच्छा है। आज पता लगा निखिल को। इज इट क्लियर? तो क्या है भाई, ओवर ईटिंग मत करो या कुछ भी ऐसा, कई सारे पॉइंट्स। अब एक तो सबसे बड़ी बात तुम्हें सीखनी है वो ये कि हो सकता है किसी मौके पे तुम्हें कॉजेज 6 याद आ जाए, तो क्या हम 6 कॉजेज लिखेंगे? क्या इतनी लिबर्टी है हमारे पास, इतना टाइम है? 40 मिनट में हमें 260 270 वर्ड में अपना ऐसे लिखना है। सब कुछ लिखने की कोशिश करोगे? नहीं करनी ही नहीं सब कुछ लिखने की कोशिश। अच्छा वो लोग तुमसे ऐसे लिखवाई क्यों रहे हैं रीनू, मतलब ये आइल्स में क्यों है? व्हाट दे वांट टू नो, योर एबिलिटी टू डिस्क्राइब अ टॉपिक, टू डिस्कस ऑन अ टॉपिक। उसकी ग्रामर देख लेंगे, उसकी वोकैब देख लेंगे, तुम टॉपिक से कितना टॉपिक में रहे वो देख लेंगे, और तुम बातों को कितना लॉजिकली डेवलप करते हो, कोहेरेंस को है वो देख लेंगे। 250 शब्दों में वो देख लेंगे, इसलिए उन्हें 1500 शब्द लिखवाने की जरूरत नहीं है तुमसे। स्पीकिंग में उन्हें जो ऑब्जर्व करना है वो 15 मिनट में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें 8-10 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, एक क्यू कार्ड होता है, 4-5 फॉलोअप क्वेश्चन, तो उसमें वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए उनको 1 घंटा बिठाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट दे वांट इज योर एबिलिटी टू डील विद इंग्लिश, और जिस भी लेवल पे आपकी एबिलिटी होती है उस लेवल का वो बैंड स्कोर दे देते हैं। बैंड यही तो है, वो लेवल ही तो है बैंड। 7 है किसी का बैंड, यानी कि उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट लेवल पे नहीं, नेटिव की तरह नहीं, लेकिन 7 इज गुड। 6 पे है तो अच्छी है, बहुत नहीं तो, लेकिन 5.5 पे है, 5 पे है तो यानी कि कमियां हैं, और वो कमियां इतनी है कि अभी वीज़ा नहीं मिलना चाहिए, अभी बाहर जाना नहीं चाहिए इस बच्चे को, बाहर की पढ़ाई ये कर नहीं पाएगा, अभी बाहर की किताबें समझ नहीं पाएगा, बाहर जो होमवर्क्स या असाइनमेंट बनाने होंगे या जो बातें करनी होगी ये कर नहीं पाएगा अगर ये 5-5.5 के बैंड पे है। तो इसलिए वो क्राइटेरिया रख दिया, +2 वाला बच्चा 6 बैंड, ग्रेजुएशन वाला वो थोड़ी और हैवी चीज़ें पढ़ेगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करिकुलम्स करेगा, तो वो 6.5 बैंड पे इंग्लिश में होना चाहिए। ये है सिंपल, अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। तो क्राइटेरिया उन्होंने बना लिया कि भाई टास्क 1 में रिपोर्ट्स करानी है, टास्क 2 में एस्से कराना है, स्पीकिंग के इंटरव्यू में 3 अलग अलग तरह की चीज़ें करवा के तुम्हारी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी देख लेनी है। क्लियर है? तो चलो अब करते हैं हमारा आज का एस्से, और वो क्या है, so this is the book, you all have this book, ठीक है ना, सबके पास है। किसी को अगर तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह की बुक लेनी है तो ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और हमारी खुद की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल है, और ई बुक्स भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि पेपर बुक लेनी है, अपने लैपटॉप में कॉपी करो या प्रिंट निकलवा लो। पॉइंट ये है कि हमारा लिखा हुआ कुछ अच्छा कॉन्टेंट आप तक आ जाए, कंटेंट आप तक आ जाए, ठीक है। तो आज हमारा जो एस्से है ओके, हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप एक पोल करवा लेते हैं कि कौन सा डिस्कस करें। एक स्टेटमेंट ये है, द परसेंटेज ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन इन वेस्टर्न सोसाइटी हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 20% इन द लास्ट 10 ईयर, डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द डिस्टर्बिंग ट्रेंड। तो ये तो है एक तरह से ओवरवेट के ऊपर, ये हेल्थ के ऊपर टॉपिक है।
एक है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द सीरियस इश्यूज दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो एक एनवायरनमेंट पे है, ग्लोबल वार्मिंग पे है। सो जो चाहता है कि ओबेसिटी वाला डिस्कस करें, रेज योर हैंड। Let me count. Don't think about you only. You have to think in majority. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, the students who want the essay on global warming today to be discussed. Okay, we will discuss about global warming. So write down the statement. So this is the statement. Global warming is one of the serious issues. This is the statement. Global warming is one of the most serious. देखो जब most आ जाता है यानी कि बहुत ज्यादा भाई, one of the आ गया यानी कि कुछ है ऐसी जो most serious problem है, तो ये उनमें से एक है issues that the world is facing today. That the world is facing today. What are the causes and what steps can be taken to control the situation? What are the causes and what steps can be taken to control the situation? ये क्लियर है भाई अपना अब तक सो फार? यानी क्या चाहिए, क्या चाहिए? व्हाट आर दी कॉजेज, रीजंस बताने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, और समाधान बताने हैं कि भाई इस पे कैसे काबू करें, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होने से रोकें, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करें। इफेक्ट्स पूछे हैं? नहीं पूछे ना तो बताने भी नहीं। क्या होते हैं वैसे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट? अगर इफेक्ट्स पूछ लेते तो क्या बताते? जब तापमान बढ़ेगा हमारे उसका, तो ग्लेशियर्स की जो आइस होगी वो मेल्ट होगी, मेल्ट डाउन ऑफ ग्लेशियर आइस। उसके आगे क्या इफेक्ट होंगे? तो फ्लड्स आएंगी, जैसे कि अभी पीछे हुआ, आप देख लो कि वो थोड़ी सी देर के अंदर ही कितना काम हो गया वहां पे, आज तक भी चीजें चल रही हैं, नुकसान है उत्तराखंड में। तो फ्लड्स होंगी, और जो धीरे धीरे करके सारा पानी जो नदियों से समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और जो तटीय इलाके होंगे वहां पे पानी भर जाएगा, वहां के लोग डिस्प्लेस होंगे, वो डिस्प्लेस होकर कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो पूरी साइकिल है, पूरा लूप है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो फिलहाल हमसे जो पूछा है कॉजेज और सॉल्यूशन, तो हमें इस पे बात करनी है, ठीक है। सबसे मेन प्लानिंग बहुत जरूरी होती है भाई, बिना प्लानिंग के शुरू ही मत करो चीजें। तो 5 मिनट लगा लो प्लानिंग में, पूरे 40 मिनट मिलेंगे वहां पे। 5 मिनट अगर तुम प्लानिंग में लगा लोगे तो 35 मिनट बच जाएंगे। उन 35 मिनट्स में से 25 से 30 मिनट किसको दो? ड्राफ्टिंग को दो, लिखने को दो। फिर भी 5 मिनट बच जाएंगे, 5 मिनट प्रूफ रीडिंग को दो कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉजेज और सॉल्यूशन। तुम बताओ, तुम क्या कॉजेज? हो सकता है हमारे पास ज्यादा हो, लेकिन हम दो पे बात करेंगे, और सॉल्यूशन भी फिर हम दो हिसाब से 2 पे बात करेंगे। क्या है कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग के? अरे पोल्यूशन, और अरे वही तो पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ही तो पोल्यूशन है। यस, इसको कैसे भूल रहे हो तुम? ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन, बस काफी है। वरना तो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी पोल्यूशन करता है, ठीक है ना। पोल्यूशन 3 तरह के अलग अलग, एयर, वाटर, सॉइल, बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइजर। तो पोल्यूशन के बहुत सारे रूप हैं। तो पोल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया एज अ होल, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। बट उस पोल्यूशन को जिसने सोखना था, एब्जॉर्ब करना था, उस CO2 को एब्जॉर्ब करना था, हम वो पेड़ ही काटने लग गए हैं। ये तो सबको क्लियर है ना कि पेड़ CO2 लेते हैं।
यानी कि जो हम एमिट करते हैं वो पेड़ कंज्यूम करते हैं, और जो हम इनहेल करते हैं वो पेड़ एमिट करते हैं, वो ट्रीज एमिट करते हैं। तो हम अपने जो फ्रेंड हैं जिन्होंने बैलेंस बनाया हुआ है इस प्लैनेट पे हमारा, हम उन्हें ही खत्म कर रहे हैं, तो फिर यानी कि हम एक तरह से अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। वी आर sabotaging ourselves। ओके, सॉल्यूशन क्या है इसके? भाई जैसे वही उसी पे काम कर लो ना, पोल्यूशन रोको। सबसे पहले तो पोल्यूशन रोको। कैसे रुकेगा पोल्यूशन? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पर्सनल व्हीकल छोड़ो ताकि व्हीकुलर एमिशन कम हो। दूसरा, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनाओ भाई। इंडस्ट्रीज में जो बिजली यूज हो रही है वो सोलर वाली यूज करो, विंड वाली यूज करो, कोयले को मत जलाओ। कोयला जलता है तो CO2 एमिशन होता है, ठीक है ना। और जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करो, उसको डिस्पोज ना करो, नदियों में मत छोड़ो, खुले में मत छोड़ो उसको, ये हो सकता है। रिसाइकलिंग पे जोर दो। हम अपने घरों में 3R प्रिंसिपल को यूज करें। क्या होता है 3R प्रिंसिपल? पूजा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम इस्तेमाल करें चीजों का, बार बार इस्तेमाल करें चीजों का, और रिसाइकल करें उन चीजों को अगर हो सकती है तो। ये इतना काफी है। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ भाई। सबसे बड़ी बात तो जितना काट रहे हैं अलग अलग मकसद के लिए, जलाने के लिए काट रहे हैं, घर बनाने के लिए, ऊपर पहाड़ों में और विदेशों में लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है। हम यहाँ कंक्रीट करते हैं, हालांकि ये नहीं है कि कंक्रीट का इस्तेमाल करना सही है। ये कंक्रीट, ये सीमेंट, ये ईंटें बनाने में इसमें भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिसेस, इसके रिप्लेसमेंट होने चाहिए। कुछ सस्टेनेबल हाउसेज बनने चाहिए। बहुत बड़ा कुछ है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसमें, बट हमें अपने आप को सीमित करना है। और कहाँ तक रखना है? बस पोल्यूशन से और डिफॉरेस्टेशन से ट्रिगर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, CO2 एमिशन, ठीक है ना। और सॉल्यूशन क्या है? प्लांटेशन ड्राइव्स लगाएं बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा सैपलिंग्स हम प्लांट करें, पौधे लगाएं। और दूसरा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी हम यूज करने लग जाएं, और कोशिश करें कि कम से कम CO2 कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करें। बड़े सारे टर्म मैंने यूज किए, वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बीच में। चलो, अब एक एक करके मैं सेंटेंस फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि कैसे हम थॉट को सेंटेंसेस में पिरोते हैं, और उससे आप सीखोगे और आपको आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव होगी। चलो फिर लिखना शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रो कैसे लिखते हैं? बैकग्राउंड स्टेटमेंट, टॉपिक से जुड़ी हुई कोई बात, और फिर टॉपिक प्रॉम्प्ट रीफ्रेज, यानी कि वो कॉजेज और आउटलाइन क्या होती है। थीसिस तो है नहीं इसमें, थीसिस तो मांगी नहीं। थीसिस क्या होती है? तुम्हारा स्टैंड तो यहाँ मांगा ही नहीं, कोई पक्ष तो लेना ही नहीं यहाँ पे। सिंपल सी बात है, उसने कहा कॉजेज बताओ, सॉल्यूशन बताओ, तो वही आउटलाइन हो जाएगी कि हम चर्चा करेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसके क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा कुछ लिख के हम अपना इंट्रो खत्म करेंगे और फिर मेन बॉडी पे आएंगे। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, दो चीजें हैं, कॉजेज और सॉल्यूशन, और दो मेन बॉडी पैरा है। एक पैरा कॉजेज को डेडिकेट कर दो, दूसरा पैरा सॉल्यूशन को डेडिकेट कर दो। तो चलो लिखना शुरू करो। फर्स्ट लाइन, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू, थोड़ा बता रहे हैं कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू the dramatic rise in the average temperature of Earth Earth's climate, अर्थ का टेम्परेचर नहीं, अर्थ की जलवायु का टेम्परेचर, अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसका टेम्परेचर, तो उसे क्लाइमेट चेंज ही बोल देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ग्लोबल वार्मिंग का जो दूसरा नाम है वो क्लाइमेट चेंज भी है, ठीक है ना। उसको हम क्लाइमेट चेंज के नाम से भी पुकार सकते हैं। सो ये क्लियर हुआ पहली लाइन के हिसाब से। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू, इशारा करती है किसका? ड्रामेटिक राइज। ड्रामेटिक यानी कि थोड़ा जल्दी हुई जो चीज और ज्यादा हुई, जिसको जो अभी हुई है 150 सालों के अंदर। और क्यों हुई है इस 150 साल में ज्यादा क्यों हुआ? मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रैवल, व्हीकल्स, स्मोक, धुआं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव, सबसे ज्यादा इन्हीं 150 सालों में हुआ है, ठीक है ना। तो एक तरह से हमारी
इवोल्यूशन और हमारा मॉडर्नाइजेशन हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इन द एवरेज जो एवरेज तापमान होता है अर्थ के क्लाइमेट का, तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। सो दिस इज द आइडियल फर्स्ट सेंटेंस जो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, वोकैब भी हमने अच्छी यूज की है। अब इसे खत्म नहीं कर रहे हैं, इसी को क्लोज बना रहे हैं। विच इज अनडाउटेडली, क्या होता है अनडाउटेडली? ये क्लोज है यहाँ पे। इस तरह का सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ग्रामेटिकल रेंज का स्कोर दिलवाएगा आपको। विच इज अनडाउटेडली अ बिग कंसर्न। क्या होता है भैया बिग कंसर्न? एक बड़ी चिंता का विषय। ऐसे ऐसे टर्म बहुत जरूरी हैं। विच इज अनडाउटेडली अ बिग कंसर्न फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड। फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड। क्या है ह्यूमन काइंड? संपूर्ण मानव जाति के लिए, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। तो हमने बता दिया ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान बढ़ना, जो कि पूरी मानव जाति के लिए चिंता का विषय है। रिसर्चर्स अराउंड द ग्लोब, क्या मतलब इस बात का? रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ता, जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडीज करते हैं, और सबसे ज्यादा शोध हो रही है इस चीज के ऊपर, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। रिसर्चर्स अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो है अलग अलग, हैव बीन, ये ग्रामर कौन सी है भाई? हैव बीन कंसिस्टेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट इज दिस वर्ड? क्या होता है ब्रेनस्टॉर्म? बहुत ज्यादा सोच विचार करना। जब अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू थिंक अबाउट अ सर्टेन थिंग और come up with a solution, try to come up with a solution, that process is called brainstorming. It's called brainstorming. Okay? तो कर रहे हैं साइंटिस्ट पूरी दुनिया में भाई लगातार brainstorming about the root causes of this problem. इस प्रॉब्लम के भाई जो रूट कॉजेज है, साइंटिस्ट उस पर लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू, क्यों कर रहे हैं भाई? इन ऑर्डर टू क्या होता है इसका मतलब? इन ऑर्डर टू का के उद्देश्य से, कोई मकसद होता है कुछ काम करने का। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। क्या होता है एक्शन प्लान? जैसे मैंने तुम लोगों का एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है कि रोज इतना काम यहाँ पे करना है, इतना काम घर से करना है, एक वीक में इतने एस्से कवर, इतने टास्क 1 कवर, इतने क्यू कार्ड कवर, इतनी रीडिंग्स, इतनी लिसनिंग। एक एक्शन प्लान होता है। और एक्शन प्लान किस लिए होता है? किसी मकसद पे पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही पहले तो पता लगे, डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोज करता है तुम्हारा कि बीमारी क्या है। जब डायग्नोज हो जाता है तो पता लग जाता है कि ये बीमारी है, फिर एक एक्शन प्लान, एक ट्रीटमेंट प्लान रेडी होता है। ये दवाई खानी है, इतने टाइम खानी है, ये टॉनिक लेना है, इस चीज़ का परहेज करना है और इतने दिन तक करना है, या सर्जरी करनी पड़ेगी या फलाना या जो भी चीज़। तो एक्शन प्लान तब आता है जब रूट कोज सामने हो। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? कंसिस्टेंटली, ग्रामर कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली। कंसिस्टेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द रूट कोज ऑफ, ये ऐसे ऐसे टर्म रूट कोज, ये फ्रेजेस हैं, रूट कोज, ब्रेनस्टॉर्म, कंसिस्टेंटली ब्रेनस्टॉर्म, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। किस लिए? टू अवर्ट फर्दर डैमेज। अवर्ट क्या होता है? रोकना, कि भाई चलो जो जहां बात आ गई, अभी भी दुनिया चल रही है, लोग सांस ले पा रहे हैं, ऐसा ना हो कि उस सारे अपने अपने ऑक्सीजन की बोतल पीछे लटका के आए, ठीक है ना, और यहाँ आके मान लो ऑक्सीजन खत्म हो गई अनुराग की, और वो मांग रहा है निखिल से, और निखिल कह रहा है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। फिर लड़ाइयाँ हो यहाँ, फिर जो थोड़ा डोमिनेटिंग सा हो, पीट पाट के मान लो जतिंदर थप्पड़ मार के ले निखिल से जैसे पहले टिफिन छीन लेते थे ना, रोटी या कुछ भी ऐसा, तो फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर में लड़ाइयाँ होगी, ऑफेंस होगा, फिर वो एक रैगिंग में भी वही होगा,
अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ रख जा। हाँ जी, दिस इज योर आइडियल इंट्रोडक्शन। समझ में आई बात? एक हल्का सा हिंट दे दिया, रूट कॉज और टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान टू अवॉइड फर्दर डैमेज। तो यानी कि रूट कॉज, कॉजेज और एक्शन प्लान यानी कि क्या उस पर किया जाए, तो उसका जिक्र आ गया और वो अभी इस पूरे एस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? क्या क्या नया सीखने को मिला? हाँ जी, क्या वर्ड या फ्रेजेस नए सीखने को मिले? बोलो। और क्या तुम इनको एज इट इज यूज कर लोगे? देखते हैं, लेट्स सी। सेम टू सेम दे दूंगा ना अगर मॉक टेस्ट में पता लगे खिचड़ी बना रखी है आप लोगों ने, है वो सब, कई तो एंड ऊपर भी लिखे हुए हैं। हाँ जी, अब हमें कॉजेस की बात करनी है। तो पहला सेंटेंस क्या होता है पैरा का? टॉपिक सेंटेंस, जो कि ये बताए कि इस पूरे पैरा में क्या होने वाला है। तो देखो वो कैसे लिखेंगे। इन मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज, इन मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज, यानी कि थोड़ा सा इस तरीके से लिखना इज बेटर कि हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं या हम स्टडीज के जो इंटरफेरेंस होते हैं उस पे बात कर रहे हैं। इन मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज, जो इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? कोई चीज जानने के लिए कोई पढ़ाई करना, इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज। सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज, सेवरल ह्यूमन activities have been found as the main contributor behind abrupt climate change over last 100 years। ये जो पूरी आपकी 20वीं सदी है, इसमें हुआ है ज्यादातर काम। इसी में ही आपके व्हीकल्स डेवलप हुए हैं, इसी में ही आपके वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स इस तरीके के डेवलप हुए हैं, इसी में ही मतलब फर्टिलाइजर्स डेवलप हुए हैं, इसी में ही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं जिसके लिए जंगल कटे हैं, पेड़ कटे हैं। तो ये लिखना यहाँ पे सबसे सही है। तो ये बात समझ में आई? ये एक तरह से टॉपिक सेंटेंस है, यानी कि मैंने एक लाइन लिख के बता दिया कि मैं ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करूंगा कि हमने खुद ही कैसे अपने एनवायरनमेंट को इस हालत में लाके छोड़ा है। सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन फाउंड, पाई गई है, एज द मेन कंट्रीब्यूटर बिहाइंड एब्रप्ट क्लाइमेट चेंज ओवर लास्ट 100 ईयर्स। अब यानी कि हमें फर्स्टली सेकेंडली करके या अपने तरीके से वो एक्टिविटी बतानी है जो हमने नोटिस की थी या हमने अपनी प्लानिंग में लिखी थी, पॉल्यूशन और डिफोरेस्टेशन। तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है इसको। फर्स्टली, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन result in a huge amount of pollution, result in a huge amount of pollution which is the main reason of rising earth rising climate's temperature on earth।
आगे पॉइंट अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये टेक्निकल वर्ड है, दोनों का अपना एक मतलब है। और ग्रामर देखो, रिजल्ट इन, अब तुम ऐसी ग्रामर नहीं यूज करते, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो उसका ये नतीजा आता है, इन दोनों चीजों से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन होता है, जो कि मुख्य कारण होता है धरती के क्लाइमेट के तापमान के बढ़ने का। ओके खुर्शीदा, आ रहा है समझ? अच्छी बात, आना चाहिए, इतनी मेहनत लग रही है तो समझ तो आना चाहिए। ओके आगे देखो, अभी से थोड़ा सा क्या मेन आइडिया आ गया, सपोर्टिंग आइडिया, सपोर्ट करना है कैसे। vehicular and industrial emission, for example, देखो for example को मैंने कैसे दो कोमा के बीच में रखा। vehicular and industrial emission for example give rise to ग्रीन हाउस गैसेज। अब जैसे ग्रीन हाउस गैसेज लिखा तो यहां ब्रैकेट का यूज कर लो आप, CO2 और मीथेन, CFC मीथेन। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन 12, जो कि एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है, जो ओजोन डिप्लीशन का एक मेन रीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, वो तो एक पोल्यूटेंट है ही, और मीथेन दैट्स आल्सो द मेन reason for pollution in atmosphere. Vehicular and industrial emission for example give rise to greenhouse gases, तो ये है in atmosphere। Which देखो, हम विच ज्यादा ओवर यूज ना हो जाए तो विच का रिप्लेसमेंट दैट भी होता है। दैट ट्रैप्स गैसेस है, ट्रैप द सनलाइट या सन हीट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, या अर्थ के एनवायरनमेंट में। तो पता है ना ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, एक मतलब ऐसी लेयर बना देती हैं जो सन हीट अंदर आती है, तो वो हीट बाहर नहीं जा पाती, वो हीट धरती पे रह जाती है। या फिर इसका एक दूसरा जो ओजोन लेयर होती है, वो शील्ड होती है एक तरह से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की। ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है और अल्ट्रा वायलेट किरणें, जो कि ज़्यादा खतरनाक हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो पृथ्वी के उसमें एंटर कर जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का तापमान बढ़ता है। हाँ जी, ये तो हो गया एक पॉइंटर। दूसरा, सेकेंडली फर्स्टली सेकेंडली क्या दे रहे हैं, कोहेरेंस कोहेशन। establishment of new residential colonies and industries ये दो चीजें हमने यहां मेंशन की। घर बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर फ्री लैंड, मतलब खाली धरती चाहिए उसके लिए भाई, फ्लैट सरफेस चाहिए, फ्री लैंड। दैट इज वाई, कोमा लगा देंगे यहां पे, उसके लिए भूमि चाहिए। दैट इज वाई डिफॉरेस्टेशन
क्या होता है डिफोरेस्टेशन? अब तुम लिखो डिफोरेस्टेशन हैपन, तुम ऐसे करके लिखोगे इसमें, हैपन नहीं, टेक प्लेस। डिफोरेस्टेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जंगलों का कटाव होता है। डिफोरेस्टेशन टेक प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। क्या होता है ऑन ए लार्ज स्केल? बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत सारा जो फॉरेस्ट कवर है बहुत सारा उससे डिक्लाइन कर देते हैं। अब इसे थोड़ा सा इलैबोरेट करें। लेस ट्रीज मीन लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर CO2। सही है ये? लेस ट्रीज मीन्स लेस ऑक्सीजन एंड मोर, सॉरी एंड भूल गया मैं लिखना, एंड मोर ऑक्सीजन, सॉरी मोर CO2 दैट ट्रिगर ग्लोबल वार्मिंग। प्लेन आया क्या बाहर कनाडा का? डायरेक्ट निकल रहे हैं बच्चे। अब देखो एक अब जो मैं बात बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से फोकस करना। हमने इस पूरे पैरा में बता दिया कि ह्यूमन की एक्टिविटीज शुरू कहां से किया था? यहीं से किया था कि ह्यूमन की एक्टिविटीज जो पिछले 100 सालों में इंसान ने की है उसी की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हुई है। अब हम इसी बात को, हमने 2 पॉइंट्स दे दिए, इसे खत्म कर रहे हैं। तो ये खत्म करने वाली लाइन कई बार कैसे लिखते हैं? दैट इज आइडियली द लास्ट लाइन ऑफ दैट पैरा। वी कंक्लूड द पैरा, नॉट द एसे। We conclude the para by such a line. Therefore, reckless attitude. क्या होता है reckless attitude? What is reckless attitude? बेपरवाह, परवाह नहीं, मतलब देख ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं, इसका हम पे क्या इफेक्ट आएगा इन अ लॉन्ग रन। Reckless attitude of human beings किसकी तरफ? towards nature is harming the earth and its environment more than other factor. Is harming the earth and its environment more than other factors। तो हमने यहाँ पे अपना ये देखो, हम कोई रिसर्चर नहीं है, शोधकर्ता नहीं है। तुम नॉर्मली स्कूल पास आउट हो, कॉलेज पास आउट हो और तुम अपना बस एक दावा ठोक रहे हो कि मेरी इंग्लिश इतनी है कि मुझे वहाँ आके पढ़ने दिया जाए। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू बिग थिंग्स लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और वेरी डीप आइडियाज, वेरी डिटेल्ड आइडियाज। सो इतना लिखोगे ये मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट के लिए। सो नेचर इज हार्मिंग द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट मोर देन अदर फैक्टर्स। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने लिखा, ये सही लिखा है नहीं लिखा। इंग्लिश सोचो, सही लिखी या नहीं लिखी, वोकैब ठीक यूज की या नहीं यूज की, ग्रामर ठीक यूज की, कनेक्टर ठीक यूज की। इंग्लिश से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है भाई, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दोस। गॉट इट? क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? मेन बॉडी पैरा 1, जिसमें कॉजेस हमने डिस्कस कर दिए। तो अभी हमें कहां बढ़ना है? सॉल्यूशन की तरफ। एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस? अभी बोल के गया हूं, क्या होंगे सॉल्यूशंस? कॉजेस को कंट्रोल करो, कॉजेस को रिमूव करो, कॉजेस को कर्ब करो, सप्रेस करो, दबाओ उनको, तो उससे प्रॉब्लम खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम कहते हो सर रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, तो मैं क्या कहता हूं, कहां पे काम करो? वोकैबुलरी। क्योंकि रीडिंग में स्कोर तभी नहीं आता जब तुम्हें लोकेशन नहीं मिलती, लोकेशन मिलने पे आंसर नहीं समझ में आता, लोकेशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसका कोज होता है तुम्हें कीवर्ड मैच नहीं होता, कीवर्ड मैच इसलिए नहीं होता, उसका कोज होता है हमारे पास वोकैबुलरी का एक्सपोजर नहीं होता।
वोकैबुलरी का एक्सपोजर तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई वोकैब बैंक नहीं है, वोकैब कलेक्शन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ वोकैब कलेक्शन करो. So that is a solution and in that way you can improve your score in reading. हाँ जी, अब आ जाओ. सॉल्यूशन है ना, तो देखो पहली लाइन कैसे लिखेंगे. In order to prevent further damage, both governments and common masses, both government and common masses. अब यहां पे both government का मतलब नहीं कि दोनों सरकारें, यानी कि both governments and common masses, दोनों सरकारें और आम लोग, दोनों both must act. मैं यहां must लिख रहा हूं, कब लिखते हैं must? जब बहुत जरूरी होता है. must act promptly. क्या होता है promptly भाई? मुस्तैदी से, फुर्ती से, तेजी से. on environmental safety. दोनों को मुस्तैदी से पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए. तो मेरी पहली सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, यानी कि मैं क्या बताने वाला हूं कि सरकार कैसे मुस्तैदी से काम करे और आम जनता कैसे किस चीज पे प्रायोरिटी पे काम करे, मैं वो लिखने वाला हूं. कैसे? प्राइमरीली. क्या होता है देखो ये वर्ड, वहां मैंने फर्स्टली लिखा, तो यहां पे फर्स्टली नहीं, प्राइमरीली, प्रमुख तौर पर, तो यानी सबसे पहले प्राइमरी जो फोकस रहना चाहिए, प्राइमरीली. अब देखो सेंटेंस फॉर्मेशन. हाँ जी, कल जो बताया था मैंने, देयर इज एन अर्जेंट नीड. अब तुम नहीं यूज करते इस तरह से. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ड्राफ्ट. नहीं, अर्ज अलग सेंस में यूज होगा नहीं. और पहली बात तो जो अर्जेंट है शायद कहीं ना कहीं बना ही वो अर्ज से हो, समथिंग दैट शुड बी ऑन प्रायोरिटी. अर्ज भी तो वही होती है एकदम से जो आती है. सो नीड टू ड्राफ्ट क्या? स्ट्रिंजेंट. अब ये वर्ड सीखने वाला है. स्ट्रिंजेंट लॉज एंड प्रमोट ग्रीन एनर्जी. So there is an urgent need to draft stringent laws and promote green energy. तो बड़ी जरूरत है कि सख्त कानून बनाए जाएं और ग्रीन एनर्जी. व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? ग्रीन वर्ड जहां भी आ गया उसका मतलब दैट इज गुड फॉर एनवायरमेंट, दैट इज नॉट हार्मिंग एनवायरमेंट. ग्रीन एनर्जी. सूरज से बिजली बना लोगे, पानी से बिजली बना लोगे, हवा से बिजली बना लोगे, इसका कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बचता. लेकिन कोयले से बिजली तब बनेगी जब कोयले से स्टीम बनेगी, कोयला जलेगा, कोयले से CO2 निकलेगा और वो CO2 एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, तो वो ग्रीन एनर्जी नहीं है. पेट्रोल से जब एनर्जी बनाओगे, जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, तो वो भी ग्रीन एनर्जी नहीं है. लकड़ी जलाओगे, वो भी ग्रीन एनर्जी नहीं है. तो ग्रीन एनर्जी सोलर, विंड, वाटर, टाइडल पावर एक दिन किया था हमने समुद्र के प्रभाव से, और भी होती है, जियोथर्मल पावर भी होती है, धरती के अंदर भी एनर्जी होती है. तो बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं. एनर्जी बाय एडमिनिस्ट्रेशन. क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन? या बाय स्टेट्स. अब जो लॉज है वो आम जनता थोड़ी बनाएगी लॉज, दैट इज द जॉब ऑफ एडमिन. प्रशासन का काम है ना, और ग्रीन एनर्जी प्रमोट करना ही प्रशासन का काम है. फॉर इंस्टेंस, अब उदाहरण दे रहे हैं भैया हम यहाँ पे कि मैंने जो ये बात कही, अब जो रीडर है वो थोड़ा सा तस्वीर बनाए कि मैं क्या बात कह रहा हूं. फॉर इंस्टेंस, impose hefty fines on factories which do not impose, थोप दो, डाल दो, which do not hefty, मोटे, बड़े फाइन, ज्यादा अमाउंट में बड़े, hefty fines on factories which do not follow environmental
सेफ्टी नॉर्म्स। क्या होते हैं नॉर्म्स या गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स कि भाई रिसाइकलिंग होनी चाहिए यहाँ पे, और कम से कम इतनी बिजली फैक्ट्री की 30% तुम सोलर से लो, या सोलर को इस्टेब्लिश करो वहाँ पे, ठीक है ना। और कहीं भी वाटर बॉडी में तुम अपना वेस्ट नहीं डिस्पोज करोगे, या इस तरह से बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। देखो हम एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के, बट थोड़ा बहुत रीडिंग करते रहेंगे या कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे तो ऐसी कोई जानकारी आ जाएगी, वो यहाँ पे हैंडी साबित होगी, यहाँ पे हमें मदद मिलेगी उस चीज़ से। तो इट्स ऑलवेज टू हैव गुड एक्सपोजर अबाउट मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग्स अराउंड अस। सेफ्टी नॉर्म्स एंड ऑफर सब्सिडीज, एंड ऑफर सब्सिडीज। क्या होता है भाई सब्सिडी? सब्सिडी यानी कि देखो सब्सिडी वर्ड कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग। आपने देखा होगा कि सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी हमें। फॉर एग्जांपल सिलेंडर बेचने वाली एक कंपनी है, एलपीजी बेचने वाली कंपनी है भारत पेट्रोलियम, ओके। और भारत पेट्रोलियम कह रहा है कि भाई मैं 900 रुपए से कम का सिलेंडर दे ही नहीं सकता, अगर उससे कम दूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है? सरकार करती है ठीक है भाई, सरकार ने क्या किया, आप लोग 900 रुपए का उससे सिलेंडर ले लो, लेकिन हम अपनी तरफ से 300 रुपए तुम्हारे खाते में डाल देंगे। यानी कि उसके पास तो पैसा पहुंच गया पूरा, सरकार ने अपने कोष से 300 रुपए हमें वापस कर दिए, तो एक तरह से वो हो गई सब्सिडी। तो सरकार ने वो 300 रुपए का बोझ अपने ऊपर ले लिया, जनता को वो 600 रुपए का पड़ गया, कंपनी को पूरा पैसा चला गया, और वो पैसा वैसे हमारा ही था जो सरकार ने हमें दिया है, वो हमारी ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है, तो उसे बोलते हैं सब्सिडी। डिस्काउंट नहीं है ये सब्सिडी होती है, और इसके पीछे भी बहुत झोल होते हैं, उसकी बात ना ही करे तो अच्छा। आगे देखो सब्सिडीज किस पे? सब्सिडीज ऑन द इंस्टॉलेशंस of solar panel for residential and commercial use, for residential and commercial use। तो राज ये बात समझ में आई कि कैसे, मतलब मान लो आज मैं डिसाइड करूं कि चलो मैं अपने घर में सोलर पैनल लगवा लेता हूं, ग्रीन एनर्जी यूज करते हैं, बिल्कुल वापस कर रहे हैं वो, लेकिन पता लगे कि जितना मेरी छत पे लगेगा घर की, वो 1,20,000 रुपए का प्रोजेक्ट है, मतलब 1,20,000 मेरी पॉकेट से एकदम निकल जाएगा, तो यार मैं पहले ही पीछे हट जाऊंगा ना, इतना पैसा तो छोड़ो। तो ऐसे में सरकार, अच्छा मैं कंपनियों कह रहा हूं जो भी वो बेच रही है, कंपनी कह रही नहीं भाई इससे कम तो हम दे नहीं सकते, तो सरकार बीच में आए कि ठीक है भाई 60,000 में तो इनको दे दे, 60,000 हम तेरे को दे रहे हैं, तो वो सब्सिडी हो गई 50%। हमें लगे ओहो 60% मतलब 1000 बच रहा है, 50% बच रहा है हमारा, तो चलो फिर तो हम लगवा लेते हैं, लेकिन कंपनी को भी पूरा मिल गया और हमें भी सस्ता मिल गया, सरकार ने वो बोझ अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसी सब्सिडी अगर आ जाए तो शायद हम लोग भी थोड़ा सा लगेगा कि चलो लगवा लेते हैं। सूरज तो रोज निकलता है भाई, या रोज नहीं तो निकलता है, सूरज होता है, गर्मियों में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बंदा पिघाल दे, तो ऐसे में बिजली ले सकते हैं, और लगवाए हुए लोगों ने भाई पिछले 4-5 साल में काफी हो गया ट्रेंड। हाँ वो अलग बात है कि जिन पे थोड़ा पैसा खुला था उन्होंने थोड़ा प्रॉम्प्टली लगवाए हैं, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं, उनके मेन खर्चे नहीं खत्म हो रहे, ठीक है ना, तो वो कैसे जाएंगे वहां तक। तो ये बात समझ में आ गई। फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज सच प्रोविजन, क्या होता है प्रोविजन? सच प्रोविजन, ऐसे प्रावधान या ऐसे एक तरह के तरीके, विल सर्टेनली, अब यहां पे देखो मैं विल लिख रहा हूं बिकॉज ये है, विल सर्टेनली, मे भी लिख सकते हैं, लाइकली टू में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं डेलिब्रेट लिख रहा हूं विल सर्टेनली, क्योंकि ये फैक्ट है, विल सर्टेनली कट डाउन कार्बन फुटप्रिंट। क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है सीखने के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल आपने वो देखा होगा ना कि किसी रंग में पैर लगा के फिर जब हम चलते हैं तो पैर छप जाते हैं, ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि इंसान भी ऐसा ही कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता जा रहा है, यानी बहुत सारा कार्बन। तो एक तरह से ये मुहावरेदार इस्तेमाल है, कार्बन फुटप्रिंट। तो इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा हमारा, अगर हम सोलर से एनर्जी लेने लगेंगे तो कोयला कम खर्चना पड़ेगा या पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम खर्चने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई? तो कट डाउन द कार्बन फुटप्रिंट, certainly cut down carbon footprint and pollution level, और वो कम हुआ तो and in turn लिख सकते हैं वहां पे, और साथ में in turn बारी बारी से and लिख ही देता हूं, ऐसे नहीं करोगे तुम, and in turn पहले तो वो खत्म होगा, फिर अगली बारी किसकी आएगी, फिर pollution level। ठीक है, ऐसी चीजें लिखने का भी एग्जामिनर पे फर्क पड़ता है कि अच्छा इसको पता है ये कैसे यूज करते हैं। तो बात हमारी आ गई है भाई यहां तक। अभी हमें और देना, एक ही था ना, प्राइमरीली हो गया मुख्य तौर पर। मोर ओवर कब लिखते हैं? मोर ओवर या व्हाट इज मोर, कल बताया था ना व्हाट इज मोर, और भी हैं तो वो लिख सकते हैं दोनों चीजें। मोर ओवर अप्लाइंग 3R प्रिंसिपल। क्या होता है 3R प्रिंसिपल? ब्रैकेट में बताएंगे हम उसको। रीड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। ब्रैकेट। गुरप्रीत, यू आर नॉट राइटिंग, यू हैव डन, हाउ हैव यू रिटन? 3R प्रिंसिपल। रिड्यूस प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है? ये आपके स्कूल का प्रिंसिपल, वो PAL होता है, ये PLE होता है, सिद्धांत। एडमिन की गलत है? कहाँ है? एडमिनिस्ट। अब ठीक है, इन लाइफस्टाइल लगाना कहाँ है भाई? ये लाइफस्टाइल में। रिड्यूस अपनी जीवन शैली में। देखो फैक्ट्रियां हैं वो तो है ही, आम इंसान भी, हम लोग नॉर्मल लोग भी अगर अपने लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल, इन लाइफस्टाइल कैन हेल्प अ ग्रेट डील, कैन help a great deal in keeping nature clean and green। हाँ जी, इनका क्या मतलब है? क्लीन एंड ग्रीन, साफ भी और हरा भरा भी। हरा भरा और साफ यानी कि लेस पोल्यूटेड। ये तो हम बात लिख रहे थे। और कैसे, थोड़ा सा मतलब मैं अब इलेबोरेशन दे रहा हूं कि कैसे 3R प्रिंसिपल कैसे। Actions such as using, क्या यूजिंग भाई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सेविंग वाटर, पानी बचाओ भाई, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट and producing less waste are easy and effective that everyone can perform। नेचर के बाद क्या? क्लीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेविंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट। अब एक्शन था ना वहां पे, एक्शंस, वहां से शुरू कर रहा हूं। एक्शंस आर इजी एंड इफेक्टिव, यानी कि ये जो एक्शन मैंने सारे बताए ये आसान है और असरदार भी हैं। किसमें? इफेक्टिव, दैट एवरीवन कैन परफॉर्म। बात खत्म। इन एक्शन को सारे लोग ही कर सकते हैं। कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और बिजली बचाएं, पानी बचाएं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव करोगे तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कर्ब करने पे। अब खत्म ये वाला पैरा भी। अब हमें क्या देना है, कंक्लूजन। क्या क्या अच्छी वोकैबुलरी थी इस पूरे पैरा में बताओ? वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रिंजेंट लॉज, पूरा फ्रेज यूज किया करो, हैफ्टी फाइन्स, इम्पोज, ये सब वर्ड आए हैं। तो कंक्लूजन दे रहे हैं भाई, इन कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? व्हाट मिस्टेक्स वी हैव कमिटेड इन ट्रीटिंग विद नेचर ओवर फ्यू डेकेड्स। जो मिस्टेक्स, व्हाट मिस्टेक्स वी हैव committed in treating with nature, in treating with nature over last century, we must not repeat, we must not repeat now, हमें अब उन्हें रिपीट नहीं करना चाहिए, and adopt a wise eco friendly, क्या होता है इको फ्रेंडली? अप्रोच ऑफ लिविंग। और क्या अपनानी चाहिए? समझदार और पर्यावरण के लिए जो सही है, इकोसिस्टम फ्रेंडली जो एक जीने का तरीका है, हमें वो अपनाना चाहिए। सो इस सजेशन के साथ खत्म हमारा प्रॉब्लमेटिक एसे खत्म। ऑल डन। सो व्हाट्स योर होमवर्क? सो यू हैव द कंप्लीट एसे रिटन बाय मी, और इस बुक में भी ऐसे है, हालांकि आप इसे अपनी इस कॉपी से करें, बिकॉज आई हैव मेड सर्टेन चेंजेस, थोड़े थोड़े से चेंजेस हमने किए हैं यहाँ। Why are you laughing? YouTube पे मिलेगा। That's good. समझ गए? So the same essay you have to write from your home as homework by analyzing everything once again. Repetition is important. Repetition से चीज़ें दिमाग में और बैठ जाती हैं। तो वो करने के बाद कल आपको ये ऐसे हमें सबमिट कराना है। ओके।